So friends, welcome back. So it's starting with the engineering aptitude syllabus. Today we'll see what are the important topics related to current issues of national and international importance. National and international importance relating to social, economic and industrial development, which is your first topic mentioned in the UPSC syllabus. So I have listed the important topics. You have to Google them and see the things related to those topics for 5 or 10 minutes, and that will be enough. Okay, so I have listed the important topics, current issues of the last 6 to 7 months, so that you do not need to search that important topics. I have ready list topics of current issues which are of importance to you. So starting with science and technology, important issues which are being covered in the last 6 months in various newspapers and magazines in the last 6 months. First is the gravitational waves. What are the gravitational waves? There is a observatory dedicated to the detection of these gravitational waves, named as Laser Interferometer Gravitational Wave, LIGO. Just Google it and watch what is gravitational wave, how it all started for 5 to 10 minutes, and that will be enough. Then smart grid, then HVDC technology, high voltage direct current transmission. Electrical engineers would be knowing something about this. What are the advantages and disadvantages of this technology? Why the demand of this technology is increasing day by day? Then cloud computing. What is cloud computing? Bioglass. What is Li-Fi? It is a wireless communication technology, latest technology which uses light for transmission of wireless data. Then what is augmented reality technology? What is cloud seeding? It is generally a technique for inducing artificial rain. What is hybrid vacuum toilets? Just गूगल these topics. ऐसे ही जो टॉपिक दिया है उसी को गूगल में आप गूगल बॉक्स में डाल दीजिएगा एंड जस्ट सी these topics for 5 to 10 minutes only. No need to do thesis on this. 5 to 10 minutes only and your topics will be covered. You will be able to solve the objective on any one of these topics if you will see the questions related to this topic in your exam. Then the next thing is defense and space technology. What is interceptor missile? What is Akash air defense missile system? What is Nirbhay missile? INS Vikrant, reusable launch vehicle. Okay, Gagan system, GPS aided geo augmented navigation satellite system. What is it? Indian regional navigational satellite system. What is scramjet technology? It is important. Recently ISRO tested it. What is cryogenic engine? Cryogenic engine usually uses liquid oxygen plus hydrogen. Okay, so क्रायोजेनिक इंजन जनरली क्या होता है, लॉन्च व्हीकल्स में हम लोग सॉलिड या लिक्विड प्रोपेलेंट यूज़ करते हैं, फ्यूल यूज़ करते हैं, लेकिन क्रायोजेनिक इंजन में लिक्विड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यूज़ करते हैं एट अ वेरी लो टेम्परेचर. क्रायोजेनिक इंजन का फ़ायदा ये है कि इट इम्पार्ट्स अ वेरी ग्रेट इम्पल्स. वेरी ग्रेट इम्पल्स का मतलब ये है कि ज़रा सा फ्यूल बर्न करके बहुत ज़्यादा उसमें जो है स्पीड वो प्रोवाइड करता है लॉन्च व्हीकल को. सॉलिड प्रोपेलेंट मान लीजिए आप 250 kg बर्न कर रहे हैं तो इट विल प्रोवाइड अ वेरी लेस इम्पल्स. ये उसकी जो क्रायोजेनिक फ्यूल है, ये सॉलिड फ्यूल के अगर आप कंपैरिजन में लें तो 100 kg बर्न करेगा लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पल्स व्हीकल को प्रोवाइड करेगा. सो आपकी व्हीकल जो है, लॉन्च व्हीकल जो है वो हल्की हो जाएगी, उसका वेट कम हो जाएगा. क्यों? क्योंकि कम आपको प्रोपेलेंट यूज़ करना पड़ेगा. अब पहले इतना प्रोपेलेंट यूज़ करके आप लिफ्ट कर पा रहे थे व्हीकल को, अब इतना ही प्रोपेलेंट भरेंगे आप व्हीकल में तब भी व्हीकल आपकी लिफ्ट हो जाएगी. सो इससे ये सब फ़ायदे हैं. तो ये बस मतलब एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, व्हाट इज़ द टेक्नोलॉजी, केवल ये आपको गूगल से पढ़ना है. नेक्स्ट इज़ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन. व्हाट इज़ जीका वायरस, हाउ इट इज़ अफेक्टिंग द वर्ल्ड. मतलब ये कहाँ से वायरस ओरिजिनेट हुआ, ये मतलब आइदर ये एनिमल टू मैन ट्रांसमिट होता है कि मैन टू मैन इन्फेक्शन कैसे होता है, व्हाट आर द वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन. देन इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, देन क्वेरकेटिन, देन जीन ट्रांसप्लांट. what is multipotent, totipotent and pluripotent stem cells. Okay, what is superbug, what is genetically modified crops, how genetically modified crops are beneficial, and what are the disadvantages or the so called harmful effects of genetically modified crops. It can be asked in your exams.
देन नोबल प्राइज़ मेडिसिन का किसको मिला, फिजिक्स का किसको मिला और केमिस्ट्री में किसको मिला, किस चीज़ के लिए मिला और क्या डिस्कवरी थी वो देख लीजिएगा, करंट इश्यूज़ में आ सकता है। देन व्हाट इज़ मैगी रो, मोनोसोडियम ग्लूटामेट पाया गया था मैगी में, तो ये केमिकल क्या है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्यों हार्मफुल है, ठीक है। देन व्हाट इज़ नीम कोटेड यूरिया, यूरिया को अभी जो फार्मर्स को सब्सिडाइज्ड यूरिया दिया जाता है उसको भी नीम से कोटेड कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है, इसके क्या फ़ायदे हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स, जस्ट सर्च इट ऑन गूगल फॉर 5 मिनट्स, दैट्स इट। 5 मिनट देख लेंगे आप, आपका तैयार हो जाएगा। देन कमिंग टू इकोनॉमी, बिकॉज सेकंड टॉपिक लिस्टेड इज इन योर सिलेबस इज सोशल इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। सो इकोनॉमी भी थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा। सो इकोनॉमी में मैक्रो इकोनॉमिक टर्म्स आपको देखने पड़ेंगे। व्हाट इज़ क्रेडिट पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी जनरल वो होती है जो आरबीआई यूज़ करती है, आरबीआई की पॉलिसी होती है टू कंट्रोल द क्वांटम ऑफ मनी, द क्वांटम एंड क्वालिटी ऑफ मनी अक्रॉस द वेरियस सेक्टर। कितनी मनी मार्केट में होनी चाहिए, कितना एक्सपेंशन होना चाहिए, कितना क्या कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए, इस पॉलिसी को जो पॉलिसी डिज़ाइन करती है उसको क्रेडिट पॉलिसी सॉरी नहीं बोलेंगे, इसको बल्कि मॉनिटरी पॉलिसी बोलेंगे, हम सॉरी मॉनिटरी पॉलिसी, ठीक है। तो इसके दो टूल्स होते हैं आरबीआई के पास, एक होता है क्वांटिटेटिव टूल, एक होता है क्वालिटेटिव टूल। क्वांटिटेटिव टूल में क्वांटम ऑफ मनी, कितनी मनी मार्केट में जा रही है और आरबीआई मार्केट से कितनी मनी सक कर रही है, उसका क्वांटिटी डिसाइड होता है इन टूल्स से। सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, व्हाट इज़ रेपो रेट, व्हाट इज़ रिवर्स रेपो रेट, व्हाट इज़ बैंक रेट, व्हाट इज़ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मॉडल टेस्ट पेपर जो यूपीएससी ने डाला था उसमें ये सब टर्म्स पूछे थे उन्होंने। और क्वालिटेटिव टूल होता है कि जितनी मनी है बैंक्स के पास वो किस सेक्टर को जाएगी, कितनी जाएगी, कहाँ नहीं जाएगी, ठीक है, वो क्वालिटी डिसाइड होती है। व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ मनी दैट इज़ गोइंग अक्रॉस द सेक्टर्स एंड वेयर द मनी इज़ बीइंग यूटिलाइज्ड। उसके टूल्स होते हैं क्रेडिट राशनिंग, मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन मतलब बैंक्स को समझाना या फार्मर्स को ज़्यादा लोन दीजिए, विजय माल्या को कम लोन दीजिए, इनको ज़्यादा लोन दीजिए, ठीक है, मॉरल सुएशन होता है। देन इट इज़ मार्जिन रेशियो। ये सारे टर्म्स आपको मिल जाएंगे 2 मिनट्स ओनली, ठीक है, हर टर्म के लिए। कैश रिजर्व रेशियो वो होता है बैंक्स को अपना कुछ नेट टाइम और डिमांड लायबिलिटी, कुछ पैसा अपना जो है आरबीआई के पास रखना पड़ता है। क्यों, क्योंकि मान लीजिए बैंक ने किसी को बहुत ज़्यादा लोन दे दिया, एकदम से किसी को एकदम 1000 करोड़ का लोन दे दिया और उसने बोरोवर जो है उसने डिफ़ॉल्ट कर दिया, बैंक को पैसा लौटाया ही नहीं, तो आप और हम जो हैं जिनके पैसे जमा हैं बैंक में वो पैनिक हो जाएंगे और सारे बैंक के पास दौड़ेंगे कि हमारा पैसा वापस करिए। तो उस कंडीशन में बैंक कुछ पैसा अपना रिजर्व बैंक के साथ रख देता है परमानेंट बेसिस पे, दैट इज़ कैश रिजर्व रेशियो। ऐसे ही ये सारे टर्म्स हैं, आप देख लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे बता दीजिएगा, तो मैं फिर एक एक टर्म अलग से फिर ट्यूटोरियल में किसी में पढ़ाऊँगा। अभी तो केवल टॉपिक्स मैं लिस्ट कर दे रहा हूँ, आप इनको एक बार देख लीजिए टॉपिक्स को। देन व्हाट इज़ इन्फ्लेशन टारगेटिंग, ठीक है, ये करंट इशू है। व्हाट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, अभी मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करने के लिए पहले आरबीआई बनाती थी, आरबीआई बनाती थी, उसमें मतलब आरबीआई का गवर्नर जो आरबीआई गवर्नर जो कह देता था वही मॉनेटरी पॉलिसी उस क्वार्टर की हो जाती थी। अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बना दी गई है। ये कमेटी क्या है, इसके कौन मेंबर्स हैं, कौन इनको सेलेक्ट करेगा फॉर ऑब्जेक्टिव। देन व्हाट इज़ जीएसटी, बहुत पेपर में पढ़ते होंगे आप, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये क्या है, व्हाट इज़ इट, ठीक है, इसके क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या इम्पेडिमेंट्स हैं, क्या इसमें रुकावटें हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, सब गूगल पे आपको मिल जाएगा। व्हाट इज़ फिस्कल डेफिसिट, हाउ टू मैनेज फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट इन द जनरल टर्म कि सरकार जितना खर्च कर रही है, सरकार के पास जितना धन है, जितना उसको टैक्स से मिल रहा है, नॉन टैक्स से मिल रहा है, जिसका जितना रेवेन्यू मिल रहा है उससे ज़्यादा वो खर्च कर रही है, मतलब एक्सपेंडिचर इज़ मच ग्रेटर देन बोरोइंग, रिसिप्ट। जितना रिसिप्ट मिल रहा है गवर्नमेंट को उससे कहीं ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा है, दैट इज़ फिस्कल डेफिसिट। इसको रोकने के क्या तरीके हैं, क्या तरीके सरकार ने अभी मतलब अडॉप्ट किए हैं रिसेंट पास में। व्हाट इज़ गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट का जो बजट होता है दो पार्ट में बाइफरकेटेड होता है, एक होता है रेवेन्यू पार्ट, एक होता है कैपिटल पार्ट। रेवेन्यू पार्ट के दो सब पार्ट होते हैं, एक होता है टैक्स रेवेन्यू, एक होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। रेवेन्यू पार्ट का रिसिप्ट
कितना मिल रहा है रेवेन्यू पार्ट में, और एक्सपेंडिचर, कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है सरकार का रेवेन्यू पार्ट में। ऐसी कैपिटल पार्ट का व्हाट इज़ रिसिप्ट, व्हाट इज़ एक्सपेंडिचर। टैक्स में क्या आता है, सारे टैक्स आ जाएंगे, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी, इम्पोर्ट टैक्स, ये टैक्स वो टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स, सारे टैक्स आ जाएंगे रेवेन्यू पार्ट में। नॉन टैक्स में वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जैसे सरकार जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, लाइसेंस फीस, ठीक है, या तरह तरह की जो सर्विसेज, रेलवेज़, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, उस सब से जितना सरकार को पैसा होता है, कमाई होती है, वो सब नॉन टैक्स में आ जाएगा। इसी तरह आप इसके सब पार्ट्स देख लीजिएगा कि क्या क्या कंपोनेंट्स हैं इसके, पूछा जा सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में। देन व्हाट इज़ स्मार्ट सिटी कंसेप्ट, स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट क्या है। व्हाट इज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स इससे पूछ सकते हैं कि जैसे नायरोबी पैकेज इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ दिस फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। SSM स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सब्सिडीज रिलेटेड इश्यूज़, ये कुछ इश्यूज़ हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे, मैं अलग से आपको एक ट्यूटोरियल बना के बता दूंगा, क्योंकि गूगल से उतना इसमें मिलेगा नहीं, बाकी सारी चीज़ें आपको गूगल पे मिल जाएंगी। देन नेक्स्ट इन्होंने अपने सिलेबस में मेंशन किया है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट मतलब सोशल कैपिटल, मतलब हेल्थ, एजुकेशन, ठीक है, हेल्थ, एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इसमें स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, स्कीम्स आपसे पूछ सकते हैं, स्कीम्स रिलेटेड टू सोशल डेवलपमेंट। जैसे करेंटली अगर आप स्कीम्स देखें तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना, ये सब करंट स्कीम्स हैं। उदय स्कीम, ठीक है, टू रिवाइव द डिस्कॉम्स, इलेक्ट्रिसिटी डिस्कॉम्स, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। व्हाट इज़ मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया के वो क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं मेक इन इंडिया के। देन अमृत, अटल मिशन फॉर रिज्यूनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, स्वच्छ भारत अभियान, सांसद आदर्श ग्राम योजना, मिशन इंद्रधनुष एंड प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम। ऑल दीज आर करेंट स्कीम्स, पूछा जा सकता है कुछ भी करेंट स्कीम्स। देन लास्ट इज इन्वायरमेंट प्लस क्लाइमेट चेंज प्लस बायोडाइवर्सिटी। पेरिस समिट 2015 दिसंबर में हुआ था, बहुत इम्पोर्टेंट है इस बार के करंट अफेयर्स के लिए। इंडिया ने इसमें कुछ अपने कंट्रीब्यूशन, इंटेंशनली नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन इसमें अपने इंडिया ने दिए थे कि हम ये करेंगे क्लाइमेट चेंज के लिए, ऐसे लड़ेंगे। तो वो क्या हैं, इंडिया के INDC क्या हैं, ये आप देख लीजिएगा। स्टेटमेंट से आपसे पूछ सकता है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हाट आर द INDC सबमिटेड बाय इंडिया इन द पेरिस समिट, ठीक है, जैसे ये है, सेकंड ये है, देख लीजिएगा। कन्वेंशनल ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, व्हाट आर न्यू यूरोनॉर्म्स, यूरोनॉर्म 5, यूरोनॉर्म 6, यूरोनॉर्म इस तरीके से, व्हाट इज नमामि गंगे प्रोजेक्ट। These topics are related to the static portion of environment and biodiversity, like what is food chain, what is food web, what are trophic levels, what is pyramid of energy, biomass, what is pyramid of number. Pyramid of energy is only upright, it can never be inverted. What is ecological succession, primary and secondary succession, what is gross primary productivity, what is net primary productivity. All these things you have read in your BTech इन इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, इफ़ यू रिमेंबर, आई डोंट नो इफ़ यू रिमेंबर और नॉट। वो बुक भी उठा के आप ये सब स्टैटिक टॉपिक पढ़ लेंगे तो आपका हो जाएगा। सो इट वॉज ऑल द करेंट इवेंट्स ऑफ द लास्ट 6 months. योर एग्जाम इज़ इन जनवरी, सो यू हैव टू रीड एटलीस्ट अप टू नवंबर करंट अफेयर्स। तो ये तो पिछले 6 महीने का था, और आगे के 2 महीने का, अक्टूबर और नवंबर का, आई विल अपलोड द टॉपिक्स इन दिसंबर, ठीक है। आउट ऑफ दिस, इसके बाहर आपको कुछ नहीं करना है, करंट इवेंट्स के लिए इतना बहुत है, इतना कर लीजिएगा, हो जाएगा। आई थिंक यू हैव लाइक दिस वीडियो, इन एनी प्रॉब्लम जस्ट लेट मी नो। थैंक यू वेरी मच।